बच्चों, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम इन एक्टिव केमिस्ट्री। आज पूनम मैम के साथ हम कार्बन एंड कंपाउंड का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। क्लियर? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलो। सबसे पहला कंपाउंड एथेनॉल। हमें दो कंपाउंड पढ़ने हैं, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल C2H5OH. It is second member of alcohol series. We have done homologous series, alcohol group, functional group OH, right? तो उसमें हमने पढ़ा था, तो इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल इज सेकेंड मेंबर ऑफ homologous series of alcohol. Then structure formula, chemical formula is here C2H5OH, and structure formula is CH3CH2OH, right? Now some important term related to ethanol. Rectified spirit. We call alcohol as a spirit. Rectified spirit. Ethanol contain 5% water. जब एथेनॉल में 5% हम वाटर मिलाते हैं, उसको क्या नाम दे देते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट। और जो आप देखते हो कॉमर्शियल वैल्यू पे आप जो एथेनॉल यूज कर रहे हैं, दैट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। गॉट इट? व्हेन यू गॉट 100% प्योर एथेनॉल, it is absolute alcohol. Clear? Then denatured alcohol, it is very important or most of the time you will see in question paper, right? Denatured alcohol is, as we all know, alcohol, rectified spirit is very useful. It has wide commercial application, widely used in on commercial level. To prevent the misuse of ethanol, यू नो ना, पार्टी वार्टी सब जगह कहीं भी यूज हो सकती है, तो उस मिसयूज को करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उस मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए डीनेचर्ड अल्कोहल, यू नो, दिस इज वेरी कॉमन टर्म विच यू विल बी सी इन योर क्वेश्चन पेपर, राइट? तो डीनेचर्ड अल्कोहल इज, एज यू नो, अल्कोहल हैज वाइड एप्लीकेशन ऑन कॉमर्शियल लेवल, राइट? टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ एथेनॉल, because we require ethanol, we want ethanol on a commercial level, but some people misuse it. You can understand, party sharty, right? Yes, you got it. Then to prevent the misuse of ethanol, sometimes we add poisonous substance to it, like methanol, pyridine, etc., to make it unfit for drinking, right? And we also add dye to it to give the blue color, so can we recognize it is a toxic substance. It is used only for commercial level, not for drinking. Clear? That is called denatured alcohol, as we have add in it methanol. Clear? This is denatured alcohol. Got it? Now move to the further topic, physical properties. Physical properties. Physical properties. Ethanol is colorless liquid. It has pleasant smell. It has low boiling point 78 degrees Celsius, so it is highly volatile. Got it? It mixes with water in all proportion. It do not have H plus ion, so it is neutral. It do not have any effect on litmus paper because it do not have H plus ion, and it does not have any iron, so it is poor conductor of electricity. So alcohol compound ethanol is कोवेलेंट इन नेचर. कैसा है नेचर में? कोवेलेंट, नॉट आयनिक, बिकॉज आयनिक होता तो इट विल गिव आयंस. सो कोवेलेंट, सो इट डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. गॉट इट? देन केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्टली ऑक्सीडेशन, जो हम पहले भी कर चुके हैं, है ना? अल्कोहल का जब भी हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से? अल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7, इनसे रिएक्शन कराएंगे, देन इट विल ऑक्सीडाइज टू एसिड. मैंने आपको बताया था CH2OH. इस पूरे कंपाउंड को यू विल कन्वर्टेड इनटू COOH, राइट? जब भी आपको ये मिलेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू आपका ऑक्सीडेशन करना है, कुछ नहीं करना, आपको पीछे का कंपाउंड एज इट इज आएगा, बस आपको CH2OH को किस में कन्वर्ट कर देना है? COOH में. क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देन डिहाइड्रेशन, जब हम अल्कोहल को 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं,
तो इट विल कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड and release water molecule. क्योंकि what is the function of concentrated H2SO4? You know it absorb moisture, it remove water, so it behave as a dehydrating agent. आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि what happen when we heat ethanol in excess concentrated H2SO4 at 170 degrees Celsius. Then first question completed. Then second question from this is what is the role of concentrated H2SO4? हम एथेनॉल में एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, तो उसमें उसका क्या रोल है कंसंट्रेटेड H2SO4 का? कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दे। कैसे होती है रिएक्शन? देखो CH3 CH2OH, राइट? यहाँ से OH और यहाँ का एक H निकल जाता है, क्या बन गया? एक H दूसरा OH, H2O एलिमिनेट हो गया, क्या बच गया? CH2 CH2। अब बॉन्ड कम हो गया, एक बॉन्ड टूट गया है क्योंकि इधर से भी एक एलिमेंट हटा उधर से भी, तो इसलिए डबल बॉन्ड। जब भी रिमूवल का केस होता है बॉन्ड इंक्रीजेस, जब भी एडिशन होता है बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेस। क्लियर? हमने किया एडिशन रिएक्शन में। एडिशन रिएक्शन इसलिए किसमें होती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि वह डबल बॉन्ड होते हैं, ऐड होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेस। When you remove anything from the compound, the number of bond increases. Got it? The last reaction of ethanol is esterification. When alcohol react with acid, it form ester. क्या बनाते हैं? Ester. Esters are the compound which have sweet fruity smell. Clear? उनकी fruity smell ester compound, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको दे देंगे compound X react with ethanoic acid give a compound which have fruity smell, तो you will recognize fruity smell means ester, और ester बन रहा है तो रिएक्शन क्या है? एस्टरिफिकेशन। क्लियर? और एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट टू फॉर्म एस्टर। अल्कोहल एसिड रिएक्ट टू फॉर्म एस्टर एंड एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? आप देख रहे हो ना तीनों रिएक्शन में। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप याद कर सकते हो, अल्कोहल की जब भी रिएक्शन आएगी आपको पता है एक बाय प्रोडक्ट अल्कोहल। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये वाला कंपाउंड है ये एक साथ आएगा, एसिड वाला पार्ट। क्लियर? जो एस्टर बनता है, एस्टर का कॉमन चीज क्या है? ये ग्रुप COO। तो जो COO ग्रुप आता है वो किससे आता है? एसिड से। गॉट इट? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये H ये बाहर निकल गया, H2O। क्लियर? तो बच गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो इसको बोलेंगे, देखो सबसे पहले इस पार्ट का नाम देंगे इथाइल एथेनोइड। क्लियर? OH CO ग्रुप रिप्रेजेंट एस्टर और इसको हम केमिकली लिखते हैं OATD। तो इसलिए हम लिखते हैं इथाइल इसके लिए, एथ इसके लिए, एथेनोइड। गॉट इट? तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट क्विकली। देन लेट्स मूव फर्दर। एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड केमिकल फॉर्मूला CH3COOH। मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वो काउंट होगा, इसीलिए C1 कितने बन गए? 1 2, इसलिए इसका नाम है एथेनोइक एसिड। क्लियर? कॉमन नेम एसिटिक एसिड। विनेगर, क्योंकि 7th में हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड इज विनेगर, बट सारा सस्पेंस 10th में क्लियर होता है एक्चुअल में विनेगर क्या है ना? एक्चुअल में विनेगर क्या है? जब हम एसिटिक एसिड का 5 to 8% वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, वाटर में सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विनेगर। 100% एसिटिक एसिड इज नॉट विनेगर। विनेगर इज 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। क्लियर? देन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मे बी फ्रॉम हियर। क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। आपको लग रहा है कितना कम है ना? सो इन विंटर इन कोल्ड क्लाइमेटिक एरियाज इट फ्रीजेस। क्लियर? सो वी कॉल्ड इट ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टीज, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है यहाँ पे, चलो सेम है। इट इज कलरलेस लिक्विड, बट यहाँ पे स्मेल किसकी होगी? वहाँ पे एथेनॉल क्या था? प्लीजेंट स्मेल, बट यहाँ हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एथेनोइक एसिड में कैसी स्मेल आती है? विनेगर जैसी। क्लियर? इट मिक्स विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। क्लियर? तो ये वाली इसकी प्रॉपर्टीज थी। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट।
केमिकल प्रॉपर्टीज में अगेन एस्टरिफिकेशन दोबारा मैंने नहीं लिखा है क्योंकि एस्टरिफिकेशन वी हैव डन इन अल्कोहल. सेम एसिड अल्कोहल रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म एस्टर्स. सेपोनिफिकेशन अगेन एस्टर. आप देख रहे हो कंपाउंड कौन सा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था COO पहचान है एस्टर की. तो एस्टर्स व्हेन रिएक्ट विद बेस it will convert into alcohol and salt, sodium salt. Clear? This reaction saponification is used for making soaps. जो आप soaps लिखते हो ना washing cleaning के लिए, that is the process used to making soap. तो esterification भी आपके लिए important है because esterification esters will be formed, fruity smell, they are used in perfume for making perfumes. Clear? So saponification method कि हम एस्टर जो बना है उसको दोबारा किससे रिएक्ट करवाते हैं, NaOH से, बेस से, तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट. क्लियर? विद बेस. अब अगर हम एसिड की बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्लियर? तो हमारा सॉल्ट बन गया है वाटर. गॉट इट? देन रिएक्शन विद Na2CO3 NaHCO3. हियर आपको पता है ये दोनों बेसिक सॉल्ट है, राइट? Na2CO3 बेसिक सॉल्ट है. देन इससे रिएक्ट करके भी हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर. बट क्योंकि कार्बोनेट है तो मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट में आपको कार्बोनेट मिलता है तो अल्टीमेटली आपका एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जरूर होगा. क्लियर? तो हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड दोनों कंप्लीट हुए. नाउ वी आर मूविंग फर्दर फॉर सोप्स एंड डिटर्जेंट. छोटा सा टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर ही लेते हैं. क्लियर? चलो, soaps and detergents. Soaps, सबसे पहले what is soap? It is a sodium or potassium salt of long chain carboxylic compound, right? For example, C17H35 COONA. क्लियर? इसको बोलेंगे सोडियम स्टीरेट. सोडियम stearate. Clear? Because it is sodium salt of long chain of carboxylic acid. और long chain of carboxylic acid को हम क्या बोल सकते हैं, फैटी एसिड. फैटी एसिड. क्लियर? तो सोप्स का क्या हो गया, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. राइट? सिमिलरली डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स these are sodium salt of benzene sulfonic acid. Sodium salt of benzene sulfonic. क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार 2 मार्क्स का पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. क्लियर? तो पहला डिफरेंस आपको क्लियर हो गया. C17H35 मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग बेंजीन सल्फोनिक एसिड. क्लियर? सेकंड पॉइंट, सोप फॉर्म डू नॉट फॉर्म लेदर विद हार्ड वाटर. जो सोडियम है, सोप है, डू नॉट फॉर्म लेदर. लेदर मीन झाग. कैसे नहीं बना पाते? सेकंड पॉइंट क्लियर करते हैं इसमें. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि किसकी लॉन्ग चेन है, सोप्स कार्बोक्सिलिक एसिड की, और डिटर्जेंट बेंजीन सल्फोनिक एसिड के. सोप जो है डू नॉट फॉर्म लेदर, डू नॉट फॉर्म लेदर विद हार्ड वाटर. हार्ड वाटर के साथ ये झाग नहीं बना पाते. क्लियर? क्यों? हार्ड वाटर में ऐसा क्या होता है, बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट. तो जो आपकी सोप्स हैं वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, इसका. फॉर एग्जाम्पल C17H35 COONA. अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, प्लस NaOH. NaOH नहीं, हार्ड वाटर. वाटर से रिएक्शन करवाने ना हम, यानी कि हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम या मैग्नीशियम सोल्ट. क्लियर? यहाँ मैग्नीशियम भी ले सकते थे. तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे आपके, आपका
C17H35COO और यहाँ पे कैल्शियम, क्लियर, प्लस NaCl, 2 NaCl, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, स्कम, यानी कि PPT टाइप पे, which will not form leather, got it। सोप्स होती हैं वो हार्ड वाटर में लेदर नहीं बनाती, बिकॉज दे हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, ड्यू टू विच soaps react with these salts and form scum, PPT. While detergents can react with hard water because they cannot form scum. They do कि हमें तो भाई cleansing action करना है, we do not form scum, we will not react with salt. ये salt से react नहीं करते और अपना काम करते रहते हैं cleansing action। तो दोनों पॉइंट क्लियर है soaps and detergents के, क्लियर। चलो अब स्ट्रक्चर ऑफ soaps, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया लॉन्ग चेन, देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपने पढ़ा C17H35COONA, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ RCOONT। इसमें आप देखेंगे दो पार्ट है, ठीक है, एक ये हेड पार्ट हो गया आपका और एक ये आपका टेल पार्ट, क्लियर। जो हेड पार्ट है वो आपका कैटायन वाला है और टेल पार्ट आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, क्लियर। हेड पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, सॉरी हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब दे हैव अट्रैक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल, एंड दिस इज टेल पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, टेल पार्ट, एंड इट इज हाइड्रोफोबिक, जो पानी से डरता है, एंड इट इज जैसी बात है पानी से डरता है, ऑयल सोल्यूबल, क्लियर। ये कैसा है आपका ऑयल सोल्यूबल, एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक, और ये हेड पार्ट है। यहाँ तक स्ट्रक्चर समझ में आया। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जो आपका कैटायनिक पार्ट है वो आपका क्या है, हेड, क्लियर, और जो आपकी टेल है वो कैसा पार्ट है आपका, हाइड्रोफोबिक, ऑयल सोल्यूबल, क्लियर। अब ये जब हम इसको अपने आप को अरेंज कैसे कर लेते हैं पानी में, जहां भी ये पानी का ड्रॉपलेट दिखता है, सपोज ये वाटर का भरा हुआ है, क्लियर, तो जो हेड पार्ट है वो अपने आप को वाटर की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और टेल पार्ट कहाँ पे रह जाता है, सेंट्रलाइज्ड, अंदर की तरफ, ठीक है, इस टाइप से। क्लियर, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है क्योंकि यहाँ वाटर ड्रॉपलेट है, तो हेड्स आर हाइड्रोफिलिक से दे इंटरेक्ट विद टुवर्ड्स द वाटर, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इसीलिए कैसा पार्ट बना लेते हैं, वाटर की तरफ आ जाते हैं। और जो टेल पार्ट है बिकॉज इट इज हाइड्रोफोबिक, तो वो इस वाटर मॉलिक्यूल से दूर हो जाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मिसेल फॉर्मेशन, क्या बना लेते हैं ये, मिसेल, क्लियर। सेम अब आपको मैं इसमें बता रही हूँ क्लींजिंग एक्शन, क्या बता रही हूँ, क्लींजिंग एक्शन, आपके एग्जाम में भी आता है ये। देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर है, सपोज किसी भी क्लॉथ पे कोई स्पॉट लगा, ऑयल स्टेन लगा, तो हम क्या करते हैं, उसे डिप करते हैं सोप वाले वाटर में, क्लियर। सोप वाटर में इस टाइप का स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो ऑयल है, ऑयल वाटर से रिमूव हो जाता है, तो ऑयल अपने आप को एनक्लोज कहाँ कर लेता है, सेंट्रल पार्ट में, इट विल गेट एंटर्ड इन द मिसेल, गॉट इट। और जब हम उसे एंटेंगल करते हैं, है ना, एजिटेटेड करते हैं इस टाइप से, तो जो स्पॉट वाला पार्ट है, ऑयल वाला पार्ट है, इट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द क्लॉथ एंड गोज इनटू द सोप वाटर, और इस तरह हमारा क्लॉथ क्लीन हो जाता है, गॉट इट। तो ये इसका क्लींजिंग एक्शन है सोप का। आई होप this topic is clear to you, and our whole chapter you have no problem, but still if you have any doubt you can post your comment, right? Okay, bye bye, have a nice day.